السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا سفر ہے ایک نہایت ہی خوبصورت پراسرار اور تھوڑا سا مہم جوئی سے بھرپور مقام کی جانب۔ ہم جا رہے ہیں ایک ایسے واچ ٹاور کی تلاش میں جو 1960 میں بنایا گیا تھا، جنگلات میں لگنے والی آگ پر نظر رکھنے کے لیے۔ یہ واچ ٹاور ایک پہاڑی چوٹی پر قائم ہے جہاں تک پہنچنا آسان نہیں، لیکن مناظر اتنے دلکش ہیں کہ تھکن کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ راستہ کافی دشوار ہے۔ ہم نے اپنا سفر بیسے واٹر فال سے واچ ٹاور کی جانب شروع کیا۔ بیسے واٹر فال ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں آپ وقت گزار سکتے ہیں اور قدرتی حسن سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر پارکنگ کی سہولت موجود ہے، لیکن یہ پیڈ پارکنگ ہے۔ اگر آپ پانی میں تیرنا چاہتے ہیں تو یہاں لائف جیکٹس بھی دستیاب ہیں جو آپ پارکنگ ایریا سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جگہ فیملیز کے لیے زیادہ موزوں نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے پتھر بہت پھسلن والے ہیں، اس لیے ان پر چڑھنے سے گریز کریں۔ اب ہم اپنے اصل مشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، واچ ٹاور کی تلاش۔ یہ بھی ایک شاندار اور دلکش مقام ہے اور ہم بہت پرجوش ہیں کہ کب یہ پراسرار ٹاور ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ مون بھائی چشمے سے پانی پینے کے لیے گئے تھے۔ مون بھائی ایک نہایت ہی مہم جو اور جفاکش شخصیت کے مالک ہیں۔ انہیں قدرتی مقامات دیکھنے اور نئی جگہوں کی سیر کرنے کا بے حد شوق ہے۔ اسی جذبے کے تحت وہ ہمیں یہاں لے کر آئے اور پورے سفر کا بہترین اور منظم انتظام بھی خود ہی کیا۔ واہ! مون بھائی کو دیکھتے ہوئے عارف بھائی نے بھی اپنی پانی کی خالی بوتل نکالی اور آہستہ آہستہ قدموں سے چشمے کی طرف پانی بھرنے چل دیے۔ چلی ایک بار پھر ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت ٹورزم ہائی وے کی طرف۔ بائک چلاتے وقت اپنے ارد گرد کے ماحول پر خاص نظر رکھیں تاکہ کوئی جانور اچانک سڑک پر نہ آ جائے۔ اب اسی گائے کے بچے کو دیکھ لیں، یہ تو ڈر کے مارے دوڑ پڑا ہے، جو کہ ایک نہایت خطرناک صورتحال بن سکتی ہے۔ اب ہم سمبلی ڈیم ویو پوائنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سمبلی ڈیم اسلام آباد اور راولپنڈی کے باسیوں کو پینے کا پانی فراہم کرتا ہے۔ یہ ڈیم سون ندی پر تعمیر کیا گیا ہے، جو پہاڑی کی چوٹی سے نہایت دلکش اور دلفریب منظر پیش کرتا ہے۔ نیچے نیلگوں پانی، ارد گرد سبز پہاڑ اور فضا میں پھیلی ہوئی خاموشی انسان کو قدرت کے قریب لے آتی ہے۔ ہم سب نے اس خوبصورت منظر کو اپنے اپنے کیمروں میں محفوظ کیا تاکہ ان حسین لمحات کو یاد رکھا جا سکے۔ کچھ دیر وہاں راکنے نظاروں سے لطف اندوز ہونے اور تصاویر لینے کے بعد ہم نے ایک بار پھر اپنے سفر کا آغاز کر دیا، دلوں میں خوشی، آنکھوں میں قدرتی مناظر اور آگے کے راستوں کی جستجو کے ساتھ۔ اب میری آنکھوں کے سامنے وہ مقام ہے جہاں سے ہم نے بنسوا واٹر فال کے لیے موڑ لیا تھا۔ تھوڑا سا مزید سفر طے کرنے کے بعد ہم اس پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے ہمیں بائیں جانب مڑنا ہے اور اپنا سفر آگے بڑھانا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے ہماری مہم کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ہم نے اس خوبصورت اور سنسنی خیز سفر کو ایک خاص نام دیا ہے، واچ ٹاور کی تلاش۔ یہ نام نہ صرف ہماری منزل کی عکاسی کرتا ہے بلکہ اس جذبے کا بھی اظہار ہے جو ہمیں اس غیر معلوم پر فضا اور پراسرار مقام کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب ہماری نظریں راستے پر ہیں، دل میں جوش ہے اور ہم مکمل تیار ہیں اگلے مرحلے کے لیے۔ یہ جو آگے جا رہے ہیں یہ ذیشان بھائی ہیں۔ ذیشان بھائی بہت خوش مزاج شخصیت کے مالک ہیں، ان کے کپڑوں سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ذیشان بھائی کی شخصیت کسی ہیرو سے کم نہیں لگتی۔ ذیشان بھائی کی اس حرکت سے لگتا ہے کہ وہ کافی تھک گئے ہیں۔ یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ تھکاوٹ کی حالت میں توجہ میں کمی آ جاتی ہے اور حادثے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ تھوڑا سا رات کر آرام کر لیا جائے تاکہ تازہ دم ہو کر سفر دوبارہ محفوظ طریقے سے جاری رکھا جا سکے۔ جب تک ہم سفر کرتے ہیں، آئیے ایک سچی کہانی سنتے ہیں، ایک ایسے نامعلوم شخص کی کہانی جس نے محنت، لگن اور حوصلے سے معاشرے میں اپنا مقام حاصل کیا۔ یہ کہانی ہے ایک عام سے لڑکے کی جس کا نام فیضان تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا یہ لڑکا مالی طور پر کمزور گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد ایک کسان تھے اور والدہ گھریلو خاتون۔
बचपन से ही फैजान में कुछ अलग सा जज्बा था, कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का। वो स्कूल से वापस आकर खेतों में वालिद के साथ काम करता, रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता और अक्सर भूखा सोता ताकि माँ बाप को खाना मिल सके। जब मैट्रिक में पूरे जिला में टॉप किया तो पूरे गांव ने पहचाना कि ये बच्चा आम है। मगर वसाइल की कमी अब भी रास्ते में रुकावट थी। शहर जाकर पढ़ना था मगर जेब में पैसे नहीं थे। इसने दिन में छोटे मोटे काम किए, ट्यूशन पढ़ाई, चाय के होटल पर बर्तन धोए और रात को कॉलेज की किताबें पढ़ता रहा। फिर एक दिन किस्मत ने दरवाजा खटखटाया। एक स्कॉलरशिप मिली और वो लाहौर की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। वहां भी जिंदगी आसान न थी मगर इसने हार ना मानी। 4 साल दिन रात की मेहनत के बाद वो इंजीनियर बन गया। नौकरी मिली, फिर तरक्की और फिर अपना कारोबार शुरू किया। आज वही फैजान एक कामयाब बिजनेसमैन है। जो कभी दूसरों के दरवाजे पर काम मांगता था, आज दूसरों को रोजगार दे रहा है। इसने न सिर्फ अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद किया बल्कि अपने गांव में स्कूल और फलाही मरकज भी बनाया ताकि कोई और बच्चा गुर्बत के बाइस तालीम से महरूम न रहे। ये थी एक आम मगर अजीम इंसान की कहानी, जो सच है, जो हौसला देती है, जो सिखाती है कि अगर नीयत सच्ची हो और इरादे मजबूत हों तो कोई ख्वाब अधूरा नहीं रहता। हसन भाई रास्ता दे दें और बाइक एहतियात से चलाएं। हसन भाई अपनी RX 3 पर खूब इंजॉय कर रहे हैं। लगता है हसन भाई भी थक गए हैं। इन बाइक्स पर खड़े होकर चिल्लाना मुमकिन होता है मगर ये काम सिर्फ वही शख्स कर सकता है जो बाइक पर मुकम्मल कंट्रोल रखता हो। बाइक पर खड़े होकर चिल्लाना न सिर्फ महारत का मुजाहरा है बल्कि थकन दावर करने का भी एक अंदाज है। ये अमल एक माहिर बाइकर का फिन होता है जो जिस्म को हरकत देकर खून की रवानी बेहतर बनाता है और थकन को वक्ती तौर पर खत्म करने में मदद देता है। हसन भाई की ये महारत वाकई काबिल-ए-दाद है मगर नए बाइकर्स को ये एहतियात के बगैर आजमाना नहीं चाहिए। रास्ते मुश्किल भी हो सकते हैं, इसलिए हर कदम पर होशियारी और तवाज़ुन रखना जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। आए इस खूबसूरत हाईवे के नज़ारे इन करते हैं। दाएं बाएं फैले सब्ज पहाड़, नीले आसमान पर तैरते बादल और ठंडी हवा की सरसराहट, ये सब कुदरत की वो नेमतें हैं जिनका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें ऐसा हुसैन और पुरअमन मुल्क अता किया। पाकिस्तान वाकई कुदरती हसन से मालामाल है। हर मोड़ पर एक नया मंजर, हर रास्ते पर एक नया तजर्बा। चलिए थोड़ी देर बाद दोबारा बात करते हैं। फिलहाल आप इस लम्हे को महसूस करें, सांस लें ताज़ा हवा में और कुदरत से अपना रिश्ता मजबूत करें। मैं यही हूँ आपके साथ। हम इस वक्त टूरिज्म हाईवे पर सफर कर रहे हैं जो एक निहायत खूबसूरत सड़क है। सड़क के दोनों अतराफ घना जंगल है और हर तरफ ऊंचे ऊंचे चीड़ के दरख्त मौजूद हैं। हमें ये देखकर खुशी हुई कि यहाँ के लोग उन दरख्तों की बहुत हिफाजत करते हैं और उनकी कटाई की इजाज़त नहीं देते। क्या आप इस सड़क के हसन को देख रहे हैं? हर मोड़ कुदरती खूबसूरती से भरपूर है, लेकिन ये मोड़ काफ़ी तेज़ और ख़तरनाक भी है, इसलिए हमेशा अपनी बाइक्स एहतियात से चलाएं। हेलमेट और मुकम्मल ड्राइविंग गियर लाजमी पहनें ताकि आप महफूज रह सकें। चलिए अब वॉच टावर की तलाश का सफर जारी रखते हैं। क्या आपको मालूम है फायर वॉच टावर किस लिए होते हैं? चलिए अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं। फायर वॉच टावर, जिन्हें उर्दू में आग की निगरानी के मीनार कहा जा सकता है, आमतौर पर पहाड़ी इलाकों, जंगलात और खुश्क मैदानों में तामीर किए जाते हैं। उनका बुनियादी मकसद आग लगने के खतरात पर नजर रखना और वक्त पर खबरदार करना होता है। इन टावर्स की बुलंदी इसलिए ज्यादा होती है ताकि निगरानी करने वाले फर्द को आसपास के वसी इलाके पर मुकम्मल नजर रहे। फायर वॉच टावर में आमतौर पर एक छोटा सा कमरा या प्लेटफॉर्म होता है जहां एक शख्स दूरबीन और दीगर आलात की मदद से जंगल या मैदान पर नजर रखता है। जैसे ही कहीं से धुआं उठता है या आग की कोई अलामत दिखाई देती है तो फौरन रेडियो और दूसरे मवासलाती जराए से मुताल्लिका महकमों को इत्तला दी जाती है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। ये टावर्स न सिर्फ कीमती दरख्तों और जंगली हयात को बचाने में मदद देते हैं
बल्कि इंसानी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में भी अहम किरदार अदा करते हैं। कई दहाइयों से ये सिस्टम जंगलात में फायर अलर्ट का एक मुअस्सिर ज़रिया रहा है, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहां जदीद टेक्नोलॉजी की रसाई महदूद होती है। तो अगली बार जब आप किसी पहाड़ी पर बने एक अकेले मीनार को देखें तो याद रखें कि वो खामोश मुहाफिज दरअसल जंगल को आग से बचाने के लिए 24 घंटे निगरानी पर मामूर है। दोस्तों, रास्ता कठिन जरूर था, लेकिन कुदरत के हुसैन मनाजिर दिल को सुकून दे रहे थे। अचानक एक मोड़ पर हमारी नज़र एक निहायत खूबसूरत जंगल होटल पर पड़ी, जो घने देवदार के दरख्तों के बीच छुपा हुआ था। होटल ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म का सीन हो। चारों तरफ सरसब्ज दरख्त, परिंदों की चहचहाहट और हल्की हवा का सिरसराना। हमने फैसला किया कि थोड़ी देर आराम किया जाए और दोपहर का खाना भी यहीं खाया जाए। बाकस को साइड पर पार्क किया और होटल के लकड़ी के बने हुए छोटे छोटे कैबिनेट्स में जा बैठे। हमने ऑर्डर दिया, चिकन कढ़ाई, ताज़ा रोटियां, सलाद और आखिर में एक कप चाय भी, क्योंकि थकन सबके चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। दोस्तों, ये चिकन कढ़ाई, वाह क्या जायका था! तंदूरी रोटियां और हरी मिर्चों वाली सलाद के साथ तो मज़ा दोबाला हो गया। मकामी मसाले और लकड़ी के चूल्हे पर पक्का हुआ खाना वाकई दिल को भा गया। खाने के बाद चाय ने हमारी थकन कुछ कम कर दी। सब साथी थोड़ा सा रिलैक्स हुए और हमने चंद खूबसूरत तस्वीरें भी बनाई ताकि यादें हमेशा के लिए महफूज रहें। अब वक्त था दोबारा सफर शुरू करने का। वॉच टावर अभी भी हमसे दूर था और सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ झुकने लगा था। मकामी लोगों ने हमें खबरदार किया था कि वॉच टावर तक जाते वक्त मुहतात रहें, क्योंकि इस जंगल में चीते भी पाए जाते हैं। वो कह रहे थे कि शाम से पहले वापस आ जाना जरूरी है, क्योंकि जंगल रात में खतरनाक हो जाता है। लिहाजा हमने अपनी बाकस दोबारा स्टार्ट की, हील मिनट पहने और एक नए जज्बे के साथ वॉच टावर की तलाश में आगे बढ़ गए। ये एक मुहिम है, एक जस्तजू जो हमें कुदरत के करीब ले जा रही है। आगे क्या होता है? क्या हमें वो वॉच टावर मिलता है? शुक्रिया साथ रहने का। उम्मीद है अपने रास्ते को खूब एंजॉय किया होगा। लीजिए, हमारी तलाश अब मुकम्मल हुई। वॉच टावर हमारे सामने है। यही वो पुरस्कार और बुलंद टावर है जिसकी हमें तलाश थी।
घने दरख्तों, ऊंचे पहाड़ों और पुरखतर रास्तों को अबूर करने के बाद आखिरकार हम यहाँ पहुँच गए। अब आपको भी दिखाते हैं ये शानदार फायर वॉच टावर, कुदरत के बीचों बीच एक खामोश निगहबान जो बरसों से जंगल की हिफाजत कर रहा है। चलिए अब इसके करीब चल कर देखते हैं। वॉच टावर की चोटी की जानिब चढ़ना एक निहायत दिलचस्प मगर एहतियात तलब मरहला होता है। जैसे जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते गए, एक खास किस्म का जोश, तजस्सुस और थोड़ा सा खौफ भी दिल में था। ये वॉच टावर बहुत पुराना है। लकड़ी की सीढ़ियां वक्त के साथ साथ कुछ जगहों से खस्ता हाल हो चुकी है। इसलिए अब से यही गुजारिश है कि ऊपर जाते हुए खास एहतियात करें और हर कदम फूंक फूंक कर रखें। हाथों से रेलिंग को मजबूती से थामें और नीचे देखने से ग्रेस करें ताकि चक्कर न आ जाए। ये सीढ़ियां आसमान की तरफ जाती हुई महसूस होती हैं, जैसे कुदरत के करीब ले जा रही है। जो हम ऊपर चढ़ते गए, नीचे का मंजर और ज्यादा हुसैन होता गया। दरख्त छोटे दुखने लगे, हुआ ठंडी और खुशगवार हो गई और परिंदों की आवाजें ज्यादा वाज़ेह सुनाई देने लगी। ये एहसास कि अब कुदरत के इतने करीब खड़े हैं अपने आप में एक रूहानी तजर्बा है। एक और बात याद रखें, ये वॉच टावर चूंकि कदीम है, इसलिए बच्चों को हरगिज अकेला ऊपर न जाने दें। उनके साथ कोई बालिग होना जरूरी है ताकि किसी भी मुमकिना खतरे से बचा जा सके। कई जगहों पर सीढ़ियां फिसलन वाली भी हो सकती हैं, खास तौर पर अगर बारिश हुई हो या नमी हो। इसलिए मुनासिब जूते पहनकर आएं ताकि आपका पाँव ना फिसले। वॉच टावर की बुलंदी पर पहुंचते ही जो नज़ारा सामने आता है वो वाकई बयान से बाहर है। चारों तरफ घने दरख्त, नीले आसमान के नीचे बिखरे सब्ज रंग, दूर पहाड़ों की चोटियां और नीचे बहती नदी, सब कुछ एक जादुई मंजर पेश करता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान दिल ही दिल में कुदरत के हसन पर रश्क करता है और खालिक कायनात की अजमत को तस्लीम करता है। ये नज़ारे, ये मंजर, ये ठंडी हवा, सब कुछ इस काबिल है कि उनके लिए ये लंबी चढ़ाई बर्दाश्त की जाए। ऊपर खड़े होकर अगर आप आंखें बंद करें और सिर्फ कुदरत की आवाज़ों को सुनें तो ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे साथ ये सफ़र तय किया। उम्मीद है आपने न सिर्फ वॉच टावर तक के मनाजिर से लुत्फ उठाया, बल्कि इस सफ़र में वो सब कुछ महसूस किया जो मैंने महसूस किया। सफ़र का हर लम्हा, हर मोड़, हर कहानी आपके साथ शेयर करना मेरे लिए खुशी की बात है।